السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج کل حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہیں۔ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ گرم ہے۔ حکومت نے الزامات بھی لگائے، الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات بھی کی، پیسے لینے کا بھی الزام لگایا۔ اب ہوگا کیا آخر؟ کیا پارلیمنٹ سے جو آئینی ترامیم ہے، جو قانون ہے، بل منظور کرا پائیں گے جوائنٹ سیشن سے؟ اور پھر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی جس کو اپوزیشن نہیں مانے گی؟ اسپیشلی الیکشن کمیشن جو متعلقہ ایک ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے الیکشن شفاف کرانا، اس کو اس طرح مسلط کیا جا سکتا ہے کوئی قانون بنا کے اس کے ریزرویشن اس قانون پہ ہوں؟ تو اس اوورال اس ساری صورتحال پر بات کریں گے صدیق صاحب کے ساتھ۔ صدیق صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو۔ صدیق صاحب، یہ حکومت پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، بضد کیوں ہے کہ ای وی ایم ہی استعمال کریں اور اسی حالت میں استعمال کریں جس حالت میں ہم نے بنائی ہے؟ جو بنائی ہے وہ الیکشن کمیشن مسترد کر چکا ہے۔ ٹیکنیکل جو اس پہ ریزرویشن ہے، سوالات اٹھائے گئے ہیں 37۔ اب حکومت نہ مطمئن کر پا رہی ہے اور نہ حکومت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ بہت شکریہ سائیں۔ یہ ضد ہے انا ہے عمران خان کی۔ اچھا، ایک تو وہ ناراض ہوا، برہم ہوا، غصہ کیا ان ممبران پہ۔ کل جب یہ بل سینٹ کمیٹی سے مسترد ہوا تو وہ کہہ رہے جی آپ کس کام کیوں نہیں آپ مینج کر سکے لوگوں کو؟ وہ بڑا برہم ہوا۔ اچھا، اور سر یہ تھا وہ تھا، ممبر پورے نہیں تھے، وہ اپوزیشن نے گورنمنٹ نے کہا آپ گورنمنٹ میں ہو کر ایک بل نہیں پاس کرا سکے۔ ویورز، یہ صدیق صاحب میں ڈسٹرب کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کلاس لی ہے اپنے وزراء کی، اپنے ممبران کی، جو کمیٹی کے پارلیمانی امور کی کمیٹی جو سینٹ کی تھی کل، جس نے بل منظور علی محمد مسترد خان، کی ہے، بابر اعوان، ان کی کلاس لی ہے۔ اعظم سواتی، جو بھی ممبرس ہیں حکومت کے، ان سب کو بولا اور کہا بھائی آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، میں پورا زور لگا رہا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر جو ہے وہ انتخاب ہو، اور آپ کو پتہ بھی تھا سینٹ کمیٹی میں ووٹنگ ہونی ہے، اور آپ ایک ممبر کا بھی اضافہ کر دیا، ایک ممبر بنائی گئی، وہ بھی اضافہ کر، اس کے باوجود آپ وہاں پہ پاس نہیں کروا سکے، تو یہ پھر اچھا خاصا برہم ہوا ہے۔ پھر یہ پریس کانفرنس کرنی، اور وہ آئی بھی نہیں، سمینہ ممتاز آئی بھی نہیں نا، اس کو ویڈیو لنک پہ لینا چاہ رہے تھے، وہ تو کمیٹی کے چیئرمین کا اختیار ہے، وہ لے بھی سکتا نہیں بھی لے سکتا، اس نے کہا جی ہم نہیں لے سکتے ان کو۔ نہیں، وہ یہ مجھے سمجھائے، یہ برابر پہلے نہیں تھے، ان کی نمائندگی اپنا اپنا جو حصہ ہوتا ہے وہ نہیں تھا؟ نہیں، وہاں پہ آپ کو پتا ہے آج کل یہ بھی ہے کہ جو 12-13 اراکین ہوتے ہیں سینٹ کی کمیٹی میں، تو وہاں پہ چونکہ میجورٹی اپوزیشن کی ہے، اپوزیشن کی میجورٹی ہے، چیئرمین بھی اپوزیشن کا ہے، تو اسی حساب سے اسٹرینتھ کے حساب سے بنتے ہیں۔ ان کا ایک بندہ کم تھا تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کر دیا، اب وہ آئی نہیں خاتون۔ وہ قانونی تھا یا ایسے ہی تھا؟ سماپتی تھی اختیار؟ وہ چیئرمین کر سکتا ہے، لیکن وہ دیکھیں چیئرمین سینٹ نے اختیار ایک استعمال کیا، وہ کر سکتا ہے، لیکن اصولی طور پر اگر آپ تناسب دیکھیں تو اس حوالے سے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چھوڑیں اس بات کو، چلو اس نے کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ حکومتی ناکامی کے اوپر عمران خان بہت زیادہ برہم ہے، اور اسی وجہ سے تو اس نے ان کو بلا کر اعظم سواتی کو، بابر اعوان کو، علی محمد خان کو، فوج چودھری جتنے بھی تھے سب کی اچھی خاصی کلاس لی ہے، اور یہ کہا کہ یہ جناب یہ آپ لوگ جو ہے یہ ایک بل جو ہے وہ پاس نہیں کرا سکے، یہ چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے، وہ ہو گیا فلاں ہے۔ پھر وہ اپوزیشن اس کے بھی اوپر وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا بھی کچھ کرے، کبھی صدر کو فون کرتا ہے کہ اس کا کوئی حل نکالے، کبھی ابھی اب دیکھیں نا پرسوں پیر کو چیف الیکشن کمشنر کی نااہلی کا جو ریفرنس ہے، جو کیس ہے، اس کی بھی سماعت ہے، وہ بھی آ گئی نا، وہ کوئی وکیلوں نے کہ جی اس کی تقرری انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ انکانسٹیٹیوشنل کیسے ہو گئی؟ وہ بھائی جو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مشاورت کی تھی، سب نے مل کے لگایا تھا نا اس کو۔ میرے خیال میں شاہد کا کان عباسی چیف کے لیے کہہ رہے ہیں، ہاں شاہد کا کان عباسی اس وقت میرے خیال میں وزیر اعظم تھا اور خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھا، ان لوگوں نے مل کے لگایا تھا 5 سال کے لیے، تو ابھی تو اس کا ٹائم ہے، تو وہ جو پروسیجر تھا وہ تو انہوں نے اختیار کیا تھا اور اس کے اوپر سب نے اس وقت ایگری کیا تھا۔ اب یہ جان بوجھ کر گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، یہ دیکھیے یہ ضد انا کے لیے یہ دو کہتے ہیں نا، اور یہ میرے خیال میں جو مجھے اب نظر آ رہا ہے، جو ممکنہ طور پر اجلاس ہوگا پیر کو الیکشن کمیشن کا، جو کہا جا رہا ہے اجلاس ہوگا، اس کو کریں گے نوٹس اعظم سواتی کو، اس کو کریں گے یہ نوٹس۔ ایک تو اس کو بولا جائے گا کہ جو تو نے الزام لگایا پیسے لینے کا، وہ الزام کر ثابت، ٹھیک ہے، اور یہ بتا یہ پیسے کس نے کس سے لیے؟ کسی ممبر نے لیے،
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिए, किसी स्टाफ ने लिए, सेक्रेटरी ने लिए, किसने पैसे लिए ये साबित कर। दूसरा जो इसने कहा कि आग लगा दो, उन्होंने कहा ये तो आप आईनी इदारों को आग लगाने की बात करके खुद एक गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं। और ये चलो उसको तो छोड़ें, अगर ये साबित ना कर सका, झूठ हो गया, और झूठा शख्स तो नाहल भी हो सकता है, इसकी तो सर पे इस वक्त नाहली की तलवार जो है वो लटक रही है। देखिए हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। एक तरफ हमें डंडा दिया हुआ है, वो जो अभी बिल आया ही नहीं मुजवजा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी, वो जो अथॉरिटी का बिल है, ठीक है, पूरे सहाफियों को अजाब और खौफ का शिकार किया हुआ है। वो फवाद चौधरी साहब ने दुरफुतनी छोड़ी है। अच्छा, अभी उसका मसवदा क्या छोड़ी हुई है? दुरफुतनी, वो छोड़ी हुई है। दूसरी तरफ हमसे वो मसवदा शेयर नहीं आज तक किया गया, और अब वो उसके ऊपर भी एहतजाज होगा। यानी कि कोई आपने अच्छा काम भी करना है तो वो दूध में मेंगने डालते हैं, यानी कि खराब करते हैं। ये काम खराब करने वाले ये काम कर रहे हैं। अब आपने ईवीएम पे करना है। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो अभी सदर साहब कह रहे हैं ना, अब सदर आरिफ अलवी कह रहा है कि इसको इस्तीफा देना चाहिए, सियासत करनी चाहिए, फलां वो भी। लेकिन इसी सदर ने ये रिकॉर्ड निकाल के देख ले, मेरे जराये के मुताबिक चंद दिन पहले जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के हुकाम वहां पे मौजूद थे, इसका तजर्बा किया जा रहा था, तो और वो वोटिंग मशीन वहां पे खराब हो गई, तो सदर ने वहां पे बोला ये क्या उठा के ले आए तुम लोग, इस तरह मशीन चलेगी। अच्छा, हाँ, ये हुआ वहां पे। और अब बाद में सदर साहब ने जब ये देखा कि ये हुकूमत इस तरह चल पड़ी है, इलेक्शन कमीशन की बिस्ती कर रही है, वो भी उन्होंने इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए। 2 साल से सदर लगा हुआ है खामोशी के साथ, और ये उसका काम नहीं है वैसे। यानी कठपुतली सिर्फ वजीर आजम नहीं है। हाँ, तो वो उस 2 साल से लगा हुआ है। हाँ। लेकिन आप इश्ताल दिलवारे, अच्छा खुद ही आईनी इदारे बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अपना काम कर रहे हैं, फिर खुद ही आप कहते हैं कि इसके आपको पसंद नहीं आता तो वो आप इस्तीफा दे दें, आप सियासत में आ जाएं। अब एक और नया शोशा छोड़ा हुआ पता है कि जी मरियम नवाज ने मरियम नवाज ने को टेलीफोन कॉल की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सिकंदर सुल्तान राजा को, और वो पकड़ी गई है, उसमें वो उनसे फेवर मांग रही है, फलां कर रही है ये। तो इसका मतलब है ये उनकी कठपुतली है, ये उनकी माउथ पीस है जिसके अल्फाज इस्तेमाल के। हालांकि उसकी कोई, मुझे नहीं लगता कोई, चलो पकड़ी भी गई हो कॉल, लेकिन आप इदारों को इस तरह गलम गलोच तो ना करें। यानी कि आप तो इमरान खान और आरिफ अलवी की कॉल नहीं पकड़ी गई थी पीटीवी पे हमले वाली, मुबारकबादों वाली? देखे क्या हुआ उसका? हाँ, कुछ भी नहीं, क्या हो गया? ये इस असल में इनके मुंह को, इदारों पे हमलों का खून लग चुका है मुंह को ना। पीटीवी पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, वजीर आजम हाउस पे हमले की कोशिशें की गई, तो ये आदि मुजरिम बन गए हैं। लगता है कि इनकी सोच जो है वो अब आदि मुजरिमों वाली बनती जा रही है इदारों पे हमलों के हवाले से। आज असद उमर ने बोला कि 2023 के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, और उस मर्दमशुमारी के तहत जो इलेक्शन होगा उसके तहत वजीर आजम इमरान खान होगा। यानी कि आपने अपोजिशन को एक तरफ रख दिया, मुल्क के अवाम को जहन्नम में फेंक दिया, महंगाई की आग में वो जल रहे हैं, और आपको ये चीज पड़ी हुई है कि हमने इलेक्शन जीतना है, हर हाल में जीतना है। तो वो जो फिर मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहा है बाइकाट वाली, इसका मतलब वो ठीक बात कर रहा है कि आप उनको भी मजबूर कर रहे हैं कि आप बाइकाट की तरफ जाएं। तो जब अपोजिशन बाइकाट कर देगी तो फिर कौन क्या क्रेडिबिलिटी होगी? अगर पीपल्स पार्टी हिस्सा ले भी ले, बाकी जमातें हिस्सा ना ले, कहाँ खड़ी होगी ये हुकूमत? इसको कोई लेजिटिमेसी इसको जो मानेगा? कोई नहीं मानेगा। ये बिल्कुल एक बंद कली की तरफ जा रहे हैं, उनको महादारे की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ, अपने व्यूवर्स से भी कहता हूँ कि ये आप आने वाले दिनों में ये सारी चीजें जो कर रहे हैं व्यूवर्स, ये इनके मुंह पे आएंगी। और शाकिर सोलंकी साहब, एक बात और मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब इस तरह के जितने भी ये कारनामे सरंजाम देने की वो जितने भी कारनामे सरंजाम देने की कोशिश करते रहे, जो इस वक्त सूरत हाल है, जो सर्वे आ रहे हैं, जो महंगाई है, अब इनका अपना अदारा शुमारियात, कल हफ्ते की रिपोर्ट आई, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर 50 रुपए से ज्यादा तो 58 रुपए वो 20 किलो का आटे का जो थैला उसकी कीमत में इजाफा हो गया। ठीक है, टमाटर फिर महंगे, गोश्त फिर महंगा, आलू फिर महंगे, प्याज फिर महंगा। वो ये एक महंगाई का ही आपको महंगाई का जो तौक आपने अवाम के गलों में डाला हुआ है ना, ये आपको बचा नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। और जो अभी सर्वे आ रहे हैं ना, लोग सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, इनके किए गए वादों से तंग है। हमने 3 साल में ये कर दिया, दूध की नहरें बहा दी, हाँ जी, और पता नहीं क्या मुल्क तरक्की कर गया। सब खोखला है, सब जो है वो बिल्कुल मसनूई है।
इनकी इकॉनमी में कुछ नहीं है। यकीन माने ये धड़ाम से नीचे गिरने वाले हैं। कभी किसी से पैसे मांगते हैं। जो मुल्क कर्जों पे चल रहा हो, जो मुल्क ये कहते हैं जी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इतने हो गए, वो भाई सारे पैसे तो कर्जों के हैं। IMF ने $2 अरब दे दिया, फलाने इतना, चीन ने इतना कर दिया, फलाने, वो तो कर्ज पड़ा हुआ ना भाई। आपका क्या है उसमें, आपका क्या है? तो ये खान साहब इस सारी चीजों के बावजूद जिद कर, अच्छा फिर लोगों को कहता है मेरी मर्जी, मीटिंगों में कहता है मेरी मर्जी, जब मेरा दिल करेगा मैं इलेक्शन करवा दूंगा, मैं EVM पे कराऊं, मैं मैनुअल करवाऊं, मैं करवा दूंगा। भाई ये तेरा काम है, ये तेरा काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। अजीब ड्रामा लगाया हुआ है। तो इमरान खान की जगह पे अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का वजीर आजम इस तरह की बातें करता तो सही वो तो कब को फारिग हो चुका होता, फारग भी हो चुका होता और ये पीछे लगे होते, नया मुकदमा बन जाता, नया बहुत मुकदमा बड़ा बनता। स्कैंडल बन जाता। हाँ, और फिर ये इस तरह की चीजें मैं आपको, मुझे जहां तक पड़ता है जो हमारे मुक्तदर इदारे हैं ना वो भी EVM के हक में नहीं है। अच्छा, अभी हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है। मैं पहले भी आपके साथ गुफ्तगू में ये बात कर चुका हूँ। यहाँ पे बिजली का निजाम, यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी का निजाम, यहाँ पे इंटरनेट का निजाम और मसाइल, उसके अंदर वो कहते हैं कोई एल्फी डाल दे, कोई उसको उठा के ले जाए, कोई रातों रात हमला कर दे, सिक्योरिटी के मामला, ये सारी चीजें हैं। सिंध में, अंदरूनी सिंध में क्या होता है, रूबी पंजाब में क्या होता है, किस तरह वोट वडेरे डालते हैं, जो किस तरह पीरी फकीरी सारा कुछ होता है, वो तो ले जाते हैं चीजें उठा के। कौन सा प्रिजाइडिंग अफसर किसी को चाय पिलाते हैं, किसी को कुछ करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं, ये जो पार्लियामेंट में अगर कानून साजी करने के लिए पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन करते हैं तो ये पास करा देंगे? नहीं, कल वाले में तो हो ही नहीं सकता। कल तो नहीं होगा, कभी आज लोगों कल है, परसों है, परसों। अब वो जो परसों वाला इजलास है, एक बड़े अखबार में मुझे अफसोस हुआ, उसने सुपर लीग लगाई कि हुकूमत वो बिल लाएगी। कैसे ला सकती है? नहीं ला सकती। खैर, अच्छा, एक बड़े कौमी अखबार यार सदर के खिताब वाले में कैसे ला कैसे सकती नहीं, है? बाद में कर लें, अगले दिन कर लें। हाँ, सदर, वो तो सदर का खिताब है सही। और ये जॉइंट सेशन में भी पास नहीं होगा, बहुत सी चीजें हैं उसमें। आपने सिर्फ कानून नहीं करना, कानून चलो आप पास करवा भी लेंगे। कितनी है आपके पास अक्सरियत कौमी असम्बली में? 6 वोट, 6-8 है ना, तो सेनेट में तो ज्यादा है। अगर अपोजिशन अपने पूरे बंदे करने जॉइंट सेशन में कामयाब होगी फिर कैसे कराएंगे? हाँ, इधर तो ज्यादा खसारे में, इधर तो ज्यादा खसारे में है। हाँ, ठीक है, 10-11 का हाँ पीपल्स पार्टी साथ देगी, पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर इस मामले पर इनके साथ खड़ी हुई है, तो फिर कैसे पास कराएंगे? किनके साथ खड़ी हुई है? अपोजिशन के साथ ना, अपोजिशन के साथ। इस मामले में तो अपोजिशन के साथ, इस मामले में अपोजिशन के साथ। अगर वहाँ पे सेनेट में इकट्ठे हो गए, इधर कौमी असम्बली में अपने बंदे पूरे कर लिए, फिर पैसे पास कराएंगे। ये बाबर अवान इलेक्टेड बंदा नहीं है जो नारे मार रहा है, नॉन इलेक्टेड है ना, तो कैसे पास कराएगा? कि जी फिर कहता है इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है मशवरे देना, फलां करना। भाई इलेक्शन कमीशन का काम है आईनी तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना, इलेक्शन कमीशन का काम है। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये साफ काम नहीं है, उनका लेटर में लिखा हुआ है 27 नुकात, उन्होंने 34 के बजाय 7 नुकात मान लिए, 27 नुकात के ऊपर तो उन्होंने एतराजात उठाए हुए हैं ना, वो 27 नुकात एतराजात तो दूर करें, नहीं दूर किए। तो ये क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस EVM का और हुकूमत और अपोजिशन का? इलेक्शन कमीशन कहाँ पे मैटर करेगा? फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आइन को फाड़ कर फेंक दें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को आग लगाएं, ठीक है, मेंबरान को फारिग करें, जो मर्जी करते फिर माशाल्लाह लगाएं फिर मुल्क में, जो कि लगना नहीं। यही हो सकता है ना हल। अगर वो आईनी इदारा है, वो शाकिर सोलंकी के साथ भी इंसाफ करेगा, मेरे साथ। और बन्नी गाला की दीवारों पे लिखा जाए कि आईनी इमारत है, कि आईन इधर बनता है, हर कुछ वहां पे बनता है। नहीं तो वजीर आजम की ये सोच है कि मैं मतलब वो शाह जो सऊदी अरब का बादशाह है उस तरह का मैं बादशाह बन जाऊं पाकिस्तान का, है ये चाह रहे हो। पार्लियामेंट न हो, आईन ना हो, कब पार्लियामेंट को कब मानता है वो तो मजबूरी है उसकी। कब मानते? कितना आया? 7 मरतबा पिछले पार्लिमानी साल में, टोटल 7 मरतबा, और ओवरऑल टोटल 12 या 13% उसकी हाजिरी बनती है। करने वालों ने जुल्म नहीं किया है? मैं कहता हूँ अभी भी जुल्म हो रहा है, जुल्म और ज्यादती। अब मैं कह रहा हूँ अच्छे काम भी इन्होंने इंतहाई बुरे तरीके से, और हर देखें साफी अपने खिलाफ कर लिए, अवाम पहले आपके खिलाफ है, अपोजिशन आपके खिलाफ सड़कों पे, इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ है। आपका क्या ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को नहीं देख रही? सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट में इनको रिलीफ नहीं दे सकी,
सेनेट के खुफिया वोटिंग तो वाले नहीं हो मामले पे सकता ना, आइन और कानून के खिलाफ वो कैसे जा सकते हैं? ये ऐसे ही इन्होंने ड्रामे बनाए हुए हैं सारे। अच्छा, एक तरफ अब ये देखिए कैसी दो नंबरी है। एक तरफ कहते हैं, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म खत लिखता है अपोजिशन लीडर को कि इलेक्शन कमीशन के 2 बंदे मुकर्रर करने हैं, तो लिहाजा आप अपने, ये मेरे नाम है, तो लिहाजा आप अपनी राय दें। दूसरी तरफ उसी इलेक्शन कमीशन को कहता है कि ये चोर है, ये तांदी कराते हैं, इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, ये जहन्नम में जाए, इनको गिरा दो, इनको आग लगा दो। वही उसी अदारे के अंदर 2 मेंबरान लगाने के लिए आपका प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर के मिलते कर रहा है। अल्लाह का वास्ता नाम दे दो। हाँ, और पहले भी 2 कर चुके हैं, पहले इन्होंने किए ना, इन्होंने किए हैं, कर चुके हैं ना। बिल्कुल। तो मुझे तो उसी को ही चोर कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, ये दोहरा मेयार, दोगली पॉलिसी। और ये आजम सवाती जैसे लोग, बाबर वान जैसे लोग मरवाएंगे इसी इमरान खान को। ये चार्जशीट बन रही है, बाकायदा चार्जशीट बन रही है। इदारों को हुकूमतें मजबूत करती है, आप इदारों को डबो रहे हैं। हाँ, ये नैया जो है ये डुबोते हैं खलीफे सर, ये खलीफे है ना। ऐसा ही है, सही। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर्स, सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।